ویلکم بیک۔ پاکستان نے پہلگام حملے کے بعد بھارتی الزامات کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ بھارتی شہریوں کے ویزے منسوخ، واگا بارڈر بند، بھارتی طیارے پاکستانی فضائی حدود میں پر نہیں مار سکتے، تمام تجارتی رابطے بھی معطل، پاکستان کے راستے بھارت کی ہر قسم کی تجارت بھی بند کر دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کے لیے پانی روکنے کو اعلان جنگ قرار دیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے حق کا پانی روکا تو اسے جنگ سمجھیں گے، مسلح افواج آبی یا سرحدی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو رد عمل برداشت کرنا ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی بھارت کو جواب دیا ہے اور آئندہ بھی جواب کی صلاحیت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا گجرات کا قصائی صرف ووٹوں کے لیے ملک کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بھارت طالبان اور BLA کو ہتھیار سپلائی کر کے پاکستان میں حملے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بھارتی فنڈڈ ہے، طالبان بھارتی ایجنٹ ہیں، BLA بھی بھارت نواز جماعت ہے۔ بھارت نے پانی روکا تو اسے سنگین حملہ تصور کریں گے۔ پاس رپورٹس ہیں انڈیا والے IEDs اور اس قسم کے جو ویپنز ہیں یا ڈیوائسز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں طالبان کو، دوسرا BLA کو۔ طالبان جو ہیں وہ بھی انڈین ایجنٹ ہیں، ان کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ دے شوڈ گو ڈیپ انٹو پاکستان، دے وانٹ ٹو اسٹرائک ایٹ ہارٹ آف دا کنٹری۔ یہ ہمارے پاس بالکل ویریفائڈ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں۔ جو مودی کی سوچ جو اس خطے میں امن نہیں ہونے دے گی، جو پلوامہ کے بعد جو انہوں نے ہمارے پہ اٹیک کیا، ان کا جہاز ڈاؤن ہو گیا، پائلٹ پکڑا گیا، خفت اٹھانی پڑی۔ اس قسم کا پھر کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، جتنی فورس وہ استعمال کریں گے پھر اس سے کوئی 10-20% زیادہ ہی ہم استعمال کریں گے۔ اب بھی اگر انڈیا جارحیت کرتا ہے، فزیکل انکرجن کرتا ہے، تو کیا پاکستان کین گو ٹو دا پوائنٹ آف یوزنگ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نوبت آئے گی۔ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے نا وہ ایک ضمانت ہے ہماری ایگزسٹنس کی، لیکن ٹیکٹیکل جو ویپنز جو ہمارے ہیں، نان نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ہمارے، اس میں بھی اللہ کی فضل سے کوئی ہم کمزور نہیں ہے۔ ابھینندن کو جب ہم نے چائے پلائی تھی تو وہ ٹیکٹیکل ویپن کے ذریعے چائے پلائی تھی، کوئی میرا مطلب ہے ہم نے کوئی نیوکس نہیں استعمال کیے تھے۔ اگر دوبارہ انہوں نے انکرجنس کی ویل ریئیکٹ۔ انہوں نے ان رائٹنگ نہیں کہا کہ ہم پانی روک رہے ہیں، پریکٹیکلی اب وہ روکنے کی نوبت میں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کا حادثہ ہوا تو اس حادثے کی ہندوستان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے انیشیٹو پہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے خلاف کوئی کاروائی کی گئی، چاہے وہ پانی کی کاروائی کی گئی یا کوئی اور کائنیٹک میجرز کیے گئے، ویل ریسپونڈ ٹو دیٹ۔ امریکہ کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا، انسانی جانوں کے ضیاع پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں، امید کرتے ہیں اس معاملے کی تحقیقات کر کے اس کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ترجمان ٹیمی بروس سے صحافی نے سوال کیا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی تھی، کیا امریکہ پاکستان بھارت کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرے گا؟ ٹیمی بروس نے کہا، اس معاملے پر صدر ٹرمپ وزیر خارجہ بات کر چکے ہیں، ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے، تاہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ In his first term, President Trump offered to mediate between India and Pakistan on the issue of Indian-occupied Kashmir. I know you just said that this administration has no position on Kashmir right now, but there's too much tension. I will say nothing more on that situation. The President and the Secretary have said things, as have the Deputy Secretary. They've made their positions clear. On to the terrorist attacks in Pahalgam. As President Trump and Secretary Rubio have made clear, the United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured, and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. It was a horrible situation, but at the same time, that's basically going to be the extent of the comments at this point. What I can tell you is, of course, as we all know, it's a rapidly changing situation, and we are monitoring it closely, as you might imagine, and we, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کی بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت میں خلل پڑ گیا۔
एयर इंडिया, इंडियागो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाज़ों को हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तवील दौरानिए की परवाज़ें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारनी और कई को रुख मोड़ना पड़ रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता जाने और आने वाली भारतीय एयरलाइंस मुतासर होंगी और उन्हें करोड़ों डॉलर का खसारा होगा। वज़ीर आज़म का नई नहरों पर काम रुकवाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक बाहमी रजामंदी पैदा नहीं होती तब तक कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल में सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय से फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद एहतजाज खत्म हो जाएंगे। नहरों का मंसूबा रोकने की खबर ARY न्यूज़ ने ब्रेक की। और सखर में पीपल्स पार्टी आज अवामी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब जलसे से बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसा गाह में इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। PP रहनुमा नासिर शाह, ज़ियाल अंजार, उवैस कादिर शाह और अरसलान शेख ने दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। खुर्शीद शाह और नासिर शाह की निगरानी में जश्न के दौरान शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। खबर आपको दे न्यूयॉर्क से, जहां पर सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम सामने आया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया, सिख फौजी मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जंग से इनकार कर दें। भारतीय फौजी में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़े। BJP हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोदी की जंगी जुनून को जंग ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांज़ेब अली मजीद आगाह करेंगे। बताइए जहांगीर। जी जहांज़ेब, आपको बता दूं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा हैं, उन्होंने अभी एक और वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो भारतीय फौज में जो सिख सिपाही हैं, जितने भी सिख हैं, उनसे ये कहा है कि वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी ना लड़ें। उन्होंने कहा कि सिख फौजी जो हैं वो मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जंग से इनकार कर दें। उनका अपने वीडियो बयान में कहना था कि BJP के हिंदुत्व एजेंडे को हासिल करने के लिए सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की जंग को जंग ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए एक दोस्ताना मुल्क है और उसने हमेशा सिखों की हमायत की है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने असल में 13 अप्रैल 2025 को जो है सिखों को कत्ल करने का एक मंसूबा बनाया था, लेकिन उन्होंने वो मंसूबा जो है ख़त्म करके ये नया मंसूबा बनाया है जब अमेरिका के नायब सदर जो हैं वो भारत के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने ANS से अजीत डोवल के साथ मिलकर जो है पहलगाम में हिंदू कत्लेआम अंजाम दिया और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर इस सूरत में कोई भी किसी किस्म की कोई फौजी कार्रवाई होती है तो सिख सिपाही जो कि भारतीय फौज में है वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दें। ठीक है, जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम सामने आया है, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। सिख सोल्जर्स, थोड़ी जंग पाकिस्तान दे नाल नहीं है, पाकिस्तान थोड़ा दुश्मन नहीं है। सिख सोल्जर्स, दे आर यूजिंग यू एज ए वेपन। डू नॉट फाइट फॉर इंडिया, डू नॉट फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान that always support Sikh community, that always support Khalistan। खबर आपको दें कराची से, जहां पर बल्दिया रशीदाबाद में फायरिंग हुई है। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया जाँ बहक शख्स की शनाख्त 63 साला राशिद रशीफ के नाम से हुई है। बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए नज़ीर।
देखें, बल्दिया रशीदाबाद में मेडिसिन कंपनी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जाबाग हो गया था। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। जय वकुआ से 30 बोर पिस्तौल का एक खौल मिला है और जो मकतूल है उसकी शिनाख्त 63 साल राशिद शरीफ के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि मकतूल मोटरसाइकिल पर जा रहा था। इसी दौरान जैसे वो मेडिसिन कंपनी के अकब पर पहुंचा, मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान है जिन्होंने कनपट्टी पर गोली मारी और फरार हो गए। जो मकतूल का आबाई ताल्लुक बहालपुर से और कराची में आबदाबाद ब्लॉक सी का रहायशी था और हब चौकी में लोहे की एक फैक्ट्री में काम करता था। जो मकतूल है उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ नकदी और शनाख्ती कार्ड मिला है। इसका बेटा भी पहुंच चुका है जिसका कहना है कि वालिद की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इस वक्त पुलिस की जानिब से मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया आपका नज़ीर। वेलकम बैक। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से। गुज़श्ता रोज़ 4804 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़िला खैबर के इलाके बाड़ा में फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खुसूसी नशस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज, डिप्टी कमिश्नर बाड़ा, DPO और खैबर समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुशरान और नौजवानों की बड़ी तादाद भी शरीक हुए। कबायली मुशरान ने अमन अमान में पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहते हुए कहा, क़याम अमन के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया और कहा, कबायली अवाम की कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कराची में मुलाकात की। इस मौके पर अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल, जिसमें माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात, ज़रई तरक्की और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मौज़ूआत शामिल थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डाली और कहा कि सिंध हुकूमत ने 21 लाख घरों की तामीर की और मुतासरीन को मालिकाना हुकूक फराहम किए। नेटली बेकर ने वज़ीर आला सिंध को अमरीकी ताउन की यकीन दहानी कराई। जिना अस्पताल के साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी के DG खान तबादले का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी की तबादला रुकवाने की अपील मुस्तरद कर दी। केस महकमा सेहत के हवाले कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने डॉक्टर शबीर चौधरी की अपील मुस्तरद करते हुए केस महकमा सेहत पंजाब के हवाले किया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने इल्ज़ाम तराशी और गलत बयानी करने पर डॉक्टर शबीर चौधरी के खिलाफ मरासला लिख दिया। मौसम की बात करें, कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।